Good morning to all of you. Class 7th, subject Social Science, Chapter 4, Growing Up as Boys and Girls. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960s कि 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. तो निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने के वर्णन में से लिया गया है। From class 4th onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' schools was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world. The boys' schools had no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. तो कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच एक आंगन होता था जहां वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। As there every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of schoolgirls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. तो जो स्कूल हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतब्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। After reading the two examples above, we realized that there are many different ways of growing up. तो ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. तो हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें
तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। We also realize that societies make clear distinctions between boys and girls. हम ये भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। This begins from a very young age. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? तो दोनों ही खिलौने खेलने के बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? Toys become a way of telling children that they will have different future when they become men and women. अब खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। If we think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys needed to be tough. All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. तो अंतर प्राय दिन प्रतिदिन ही छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के भविष्य या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है आप उसकी रीडिंग करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को लिख के याद करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।